रहूंगा, महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा, यीशु के समय हर पल रहूंगा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, लेकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। और मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, लेकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्लाकर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। ओ मेरा दिन बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। तो मैं चिल्लाकर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। ओ मेरा दिन बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। ओ ओ ओ ओ ओ आइए हम लोग सब मिल करके प्रभु यीशु की आराधना करें। वो महिमा के योग्य, वो राजाओं का राजा है। तुम दिल से उसकी आराधना करें। ಮಹಿಮೆಯ ರಸದಿಂದ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ, ಪರಲೋಕ ರಾಜನಿಂದ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಮಹಿಮೆಯ ರಸನಿಂದ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ, ಪರಲೋಕ ರಾಜನಿಂದ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಯೇಸುವೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು, ರಾಜನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆನು. ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು, ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆನು. ಮಹಿಮೆಯ ರಸನೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ, ಪರಲೋಕ ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಮಹಿಮೆಯ ರಸನೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ, ಪರಲೋಕ ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಕೃಪೆಯುಳ್ಳ ಐಶ್ವರ್ಯನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ, ಸರ್ವವನ್ನು ಆಳುವವನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಕೃಪೆಯುಳ್ಳ ಐಶ್ವರ್ಯನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ, ಸರ್ವವನ್ನು ಆಳುವವನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ನನ್ನಯ ರಕ್ಷಕನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ, ನನ್ನಯ ಜೊತೆಗಾರನೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಮಹಿಮೆಯ ರಸನೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ, ಪರಲೋಕ ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಮಹಿಮೆಯ ರಸನೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ, ಪರಲೋಕ ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಉನ್ನತ ದೇವಾನಿರೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ, ಪರಿಶುದ್ಧ
ದೇವಾ ನೀನೇ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಉನ್ನತ ದೇವಾ ನೀನೇ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವಾ ನೀನೇ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿರುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾಡಿರುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಪರಲೋಕ ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಪರಲೋಕ ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಕೃಪೆಯುಳ್ಳ ಐಶ್ವರ್ಯನೇ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಸರ್ವವನ್ನು ಆಳುವವನೇ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಕೃಪೆಯುಳ್ಳ ಐಶ್ವರ್ಯನೇ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಸರ್ವವನ್ನು ಆಳುವವನೇ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ನನ್ನಯ ರಕ್ಷಕನೇ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ನನ್ನಯ ಜೊತೆಗಾರನೇ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಪರಲೋಕ ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಪರಲೋಕ ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು, ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆನು. ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು, ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆನು. ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಪರಲೋಕ ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಪರಲೋಕ ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ. Father, we thank you, Lord. We thank you, Father, for you are good. Lord, you are good, oh Father. And thank you, Lord, for your redemption. Thank you for the sacrifice, oh God. Because you love us, oh Father. You sacrificed yourself, oh God, for us. Lord, this love cannot be fathomed, oh God, even in our deepest imaginations, oh Father. We cannot understand this love, oh God. And so, Lord, today we want to give you thanks. We want to thank you, God, with all our heart, oh Father. With everything that is within us, we want to thank you. And we want to praise you, Lord, for your goodness, for your love, for your greatness, oh God, over our lives. Lord, we bless your name, Father, this morning. You saved us, oh God, from everything, oh God. And today we want to offer you our praise. We want to offer you our thanksgiving, oh God. We want to come into your house with praise and thanksgiving, with worship in our lips, oh Father. We bless you, God. We bless you. Thank you. यीशु तेरे करीब
से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद, यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे चुराया, अपने राह पर चलाया, तूने
परमेश्वर आप हमारा जरिया है। जब संसार के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं प्रभु, हमारी जरूरत के समय में हमारे लोग जब हमसे दूर चले जाते हैं, अपना मुंह फेर लेते हैं, तब एकमात्र जरिया आप हमारे बनते हैं। जब लगता है हमारी कोई मदद नहीं करेगा प्रभु, तब स्वयं आप स्वर्ग से उतर करके हमारे सामने आते हैं और कहते हैं तुम्हारी जरूरतों को मैं पूरा करूंगा। प्रभु आपकी महानता की कोई सीमा नहीं है, आपके प्रेम की कोई सीमा नहीं है, इसलिए हम आज सुबह बहुत ही महिमा आपको देना चाहते हैं। तन मन धन से प्रभु और पूरे दिल से गीतों को गा करके आपको स्तुति देना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु हमें पता है आप ही हमारे जरिया हैं, आप ही हमारी सारी जरूरतों को पूरा करते हैं। धन्यवाद हो परमेश्वर। तेरी महफिल में किया है शामिल, हमको बनाया तूने तेरे प्यार के काबिल। है तेरा नाम सब नामों से ऊंचा, कोई नहीं तेरे समान। ना था ना है और ना कोई होगा तेरे जैसा राजा महान। है बेटा तू दरिया जीवन का, तू झरना रास्ता, तू
सबसे ऊंचा नाम यीशु नाम, यीशु नाम, नाम नाम, यीशु नाम, नाम नाम, यीशु नाम, नाम नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, नाम नाम, यीशु नाम, नाम नाम, यीशु नाम, नाम नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, नाम नाम, यीशु नाम, नाम नाम, यीशु नाम, नाम नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, नाम नाम, यीशु नाम, नाम नाम, यीशु नाम, नाम नाम, यीशु नाम। अव्वल नाम, नाम नाम, सुंदर नाम, नाम नाम, सबसे ऊंचा नाम यीशु नाम। हालेलुया, सबसे ऊंचा नाम, सबसे ऊंचा नाम। Hallelujah. Name above the other names, God. Worship you, Jesus. Thank you, Father. Thank you for this wonderful name, Lord. मीठा नाम, नाम नाम, सच्चा नाम, नाम नाम, प्यारा नाम, नाम नाम, यीशु नाम। Sing it, मीठा नाम, मीठा नाम, नाम नाम, सच्चा नाम, नाम नाम, प्यारा नाम, नाम नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, नाम नाम, यीशु नाम, नाम नाम, यीशु नाम, नाम नाम, यीशु नाम। अव्वल नाम, नाम नाम, सुंदर नाम, नाम नाम, सबसे ऊंचा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, नाम नाम, यीशु नाम, नाम नाम, यीशु नाम, नाम नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, नाम नाम, यीशु नाम, नाम नाम, यीशु नाम। प्रभु यीशु, ये सच है जैसा हमने गाया, आपका नाम अव्वल है, आपका नाम अच्छा है, और सारे जहां में सबसे ऊंचा आपका नाम है। संसार में जितने भी हम नामों को ले प्रभु, उन सब नामों में सबसे खूबसूरत नाम प्रभु आपका नाम है। सबसे प्यारा नाम है प्रभु आपका। यही वो नाम है प्रभु जिसे हमने जीवन में अपनाया है। यही वो नाम है जिसको हमने कहा है, ये मेरा नाम से उद्धार करता है। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके इस पवित्र नाम को जो आपने हमारे जीवन में दिया है। हम में से हर एक लोग ये विश्वास करते हैं प्रभु कि अगर हम जहां कहीं पर भी हों, जैसी भी विपरीत परिस्थिति में हो, अगर हम आपके नाम को पुकारेंगे यीशु, तो आप अपने हाथों को बढ़ा करके हमें बचा लेंगे। आप अपने हाथों को बढ़ा करके
हमें हर एक विपत्ति से खींच लेंगे। हर एक दलदल में अगर हम गहरे में भी फंस गए प्रभु, तो आप अपने हाथों को फैला के हमें बचा लेंगे। प्रभु धन्यवाद हो आपके इस नाम के लिए। आज की सुबह में प्रभु एक बार फिर से हम अपने सिरों को झुकाते हैं, अपने दिल से प्रभु हम आपकी आराधना करने के लिए आए हैं। प्रभु आपने जिस प्रकार हम सबको मदद किया गीतों को गाने में, आपसे प्रार्थना करने में, हम अपने दिल को जो प्रभु आपसे जोड़ पाए हैं और आपकी उपस्थिति को जो हमने महसूस किया है प्रभु, इन सब बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये सारी धन दौलत, रुपया पैसा, कपड़ा, घर सब आपका दिया है प्रभु। हमारी इस धन्यवाद की भेंट को ग्रहण करें। धन्यवाद कि प्रभु आज आपने फिर से हमें इस्तेमाल किया, योग्य बनाया, इतनी आशीष दी कि हम आपके लिए गा सकें। सारा आदर महिमा प्रभु यीशु हम आपको देते हैं और आपके नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। गुड मॉर्निंग चर्च। कितनी ही मनोहर बात है कि एक बार फिर से मैं आज आपके सामने हूँ। प्रभु का बहुत धन्यवाद कि उसने अब तक हम सबको बहुत ही संभाल के रखा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे वर्शिप टीम के लिए, इतना अद्भुत और आत्मिक रीति से हमको आराधना में लेकर के गए। जब हम आराधना कर रहे थे हमने प्रभु की उपस्थिति को महसूस किया। आपसे मेरा अनुरोध है, आज आप जहाँ कहीं पर भी हैं, आपको कोई सी भी बीमारी होगी, कोई सी भी समस्या होगी, आप जिस बीमारी का सामना कर रहे हैं, जहाँ पर आपको तकलीफ है, जहाँ पर आपको दर्द है, आप अपना हाथ वहाँ पे रखिए। परमेश्वर आपको चंगा करेगा। आप प्रार्थना कीजिए विश्वास के साथ में कि प्रभु यीशु मैं आपके नाम को लेती हूँ, मैं आपके नाम को लेता हूँ। मेरी जो भी तकलीफ है, मेरी जो दर्द है, मेरी बीमारी है, उसको आप जानते हैं। मैं काफ़ी दिनों से इस बीमारी से, इस दर्द से परेशान हूँ, मुझे चंगा कीजिए। अगर आप विश्वास के साथ में उस बीमारी की जगह और दर्द की जगह पर अपने हाथ को रख के प्रार्थना करेंगे मेरे साथ, तो 100% सच है कि यीशु मसीह हमारा आपको चंगा करेगा। मेरे प्रिय प्रभु जी, आपका नाम जो पवित्र है, मेरे प्रिय यीशु आपका नाम जो सामर्थी है, मेरे प्रिय यीशु जिस नाम से दुष्टात्माएं भाग जाती हैं, जिससे बीमारियां चंगी हो जाती हैं, उसी नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं। हमारे जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते प्रभु, जिसको भी जहाँ कहीं पर भी दर्द है प्रभु, जो तकलीफ है या कई सालों की बीमारी है, तो प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, उन्हें छू और चंगा कर यीशु। हमारे ये लोग इसी समय प्रभु आपकी ओर से चंगाई पाने पाए। प्रभु आपकी ओर से सामर्थ को, आपकी ओर से चंगाई को हमारे इन प्रिय लोगों के लिए भेजते हैं, जिन्होंने आप पे विश्वास करके अपने हाथों को अपने दर्द की जगह पर, अपने बीमारी की जगह पर रखा है। हर एक सर दर्द, हर एक बीमारी, हर एक तकलीफ, हर एक दिल की समस्या, हर एक जोड़ों का दर्द यीशु के नाम से दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपका सामर्थ प्रकट होने पाए। परमेश्वर हमारे प्रिय लोगों को चंगा करे। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। विश्वास कीजिए प्रभु ने आपको चंगा किया है। लगातार ऐसे ही यीशु मसीह के नाम को लेते रहिए और अपने जीवन में अद्भुत कामों को देखिए। हम इसी प्रकार हर हफ्ते, पूरे हफ्ते हम लोग कुछ ना कुछ ऑनलाइन मीटिंग्स करते रहते हैं। हमारा चर्च की ओर से आपसे निवेदन है कि कृपया कर इन मीटिंग्स को आप जरूर ज्वाइन कीजिए। हमारे इन पूरे हफ्ते के मीटिंग्स का लिंक्स हम आपको भेजते रहेंगे। हमारे जितने भी हिंदी बोलने वाले भाई लोग या बहन लोग हैं, हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि हर सोमवार शाम को हम लोग अगुआ लोगों के लिए एक मीटिंग का आयोजन करते हैं। हमारे जितने भी इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं, उनके लिए शनिवार को सुबह 8 बजे हम मीटिंग का आयोजन करते हैं। तो हमारे अगुआ लोगों से, हमारे कलीसिया के और लोगों से अनुरोध है, प्लीज़ इन मीटिंग्स में आप जरूर शामिल होइए और परमेश्वर की आशीष को पाइए।
हम अपने जवानों को भी अपने से अलग नहीं करना चाहते हैं, इसलिए ऑनलाइन के थ्रू भी हम उनके साथ में जुड़े रहना चाहते हैं। और मंगलवार से गुरुवार तक हम लगातार ऑनलाइन आकर के एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, उनसे जुड़े रहते हैं, जहां पर हमारे जवान लोग अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को भी बोल सकते हैं और हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं और वचन को बोल के उनको उत्साहित करते हैं। प्लीज़ हमारे जितने भी जवान लोग हैं या आपके घरों में जो जवान हैं, प्लीज़ उनको उत्साहित कीजिए ताकि हमारे इस मीटिंग में वो ज़रूर शामिल हो जाएं। भूलिएगा नहीं, हर बुधवार रात को 11 बजे से 1 बजे तक हम सब मिलकर मध्य रात्रि की प्रार्थना करते हैं। जब संसार के लोग थक जा के अपने बिस्तर पे सो जाते हैं, हम मसीही लोग जो यीशु को पुकारते हैं, हम लोग रात के समय में दुआ और प्रार्थना में समय बिताते हैं। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है, कृपया कर ऐसा मौके को आप छोड़िए मत और ज़रूर इस हमारे मध्य रात्रि की प्रार्थना में शामिल हो जाइए। साथ ही साथ हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं, हमारी जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए सिस्टर अग्नेता एक मीटिंग का आयोजन करती है हर गुरुवार शाम 7 बजे से। भूलिएगा नहीं, हर गुरुवार शाम 7 बजे से। और इसमें बहुत सी लेडीज़ लोग शामिल होती हैं। अगर आप अब तक चूक गए हैं, आपने मीटिंग अटेंड नहीं कर पाई है, तो भूलिएगा नहीं, इस गुरुवार शाम 7 बजे आप जरूर आइए और आशीष को देखिए। आखिरी में हम आपको बताना चाहते हैं, आप लोगों को मालूम है हर शुक्रवार शाम को 6:30 बजे से लेकर हम मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं। मैंने इसको अटेंड किया है, मैंने खुद अपने जीवन में आशीष पाया है, अपने आप को बहुत उत्साहित महसूस करता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ आप भी इस मीटिंग को मत छोड़िए। आप समय पे काम खत्म करके आप 6:30 बजे हमसे ऑनलाइन में मध्यस्थता की प्रार्थना में आप शामिल हो जाइए। लिंक्स हम आपको भेज देंगे आपके मोबाइल पे, आपको जस्ट क्लिक करना है और आप हमारी मीटिंग में जुड़ जाएंगे। हमारा प्रभु महान है, वो लगातार आपको आशीष देगा। आप सबको जय मसीह की। प्रभु ने तो हमें बहुत कुछ दिया है और लगातार देता आ रहा है। ये समय है कि हम इस समय प्रभु के लिए दें। प्रभु ने जो कुछ भी हमारे जीवन में ताकत दिया, हमने कमाया है उसका 10वां हिस्सा और धन्यवाद की भेंट हम प्रभु के लिए दें। जो लिंक्स हैं हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, आप उन लिंक्स को जा करके और बैंक डिटेल्स में जा करके आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। प्रभु हमारा महान है, वो लगातार आपको आशीष देता रहे। अभी समय है कि हम परमेश्वर के वचन को सुने और उसकी आशीषों को पाएं। जब परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं
परमेश्वर हमसे बात करता है। हम कोई सी भी तकलीफ में क्यों ना हो, अगर ध्यान से हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, परमेश्वर आपसे बात करेगा। तो आज हमारे बीच में फिर से पास्टर मैथ्यू हैं, जो परमेश्वर के जीवित वचन को आपके लिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो आइए हम अपने आत्मिक कानों को खोल लें और परमेश्वर के वचन को सुने और आशीष पाएं। बाकी का समय पास्टर मैथ्यू के लिए। So, good morning, church. सुप्रभात कलीसिया। One more Sunday, we are online. और एक और इतवार है, हम ऑनलाइन आए हैं। I'm hoping that at least next week we'll be able to get together and meet in person, in flesh and blood, and worship the Lord together. और आशा करता हूँ कि अगले आने वाले इतवार को जो है हम साथ में देह में एक होकर आकर हम साथ में प्रभु की आराधना करेंगे। Crisis of संगति बनेगी। COVID is subsidizing, reducing day by day. और महामारी की जो संकट है वो दिन बर दिन घट रहा है। Things are improving, but we are still under lockdown. और चीजें बेहतर हो रही है, लेकिन फिर भी हम बंद दरवाजे में हैं। Today I want to speak about how you take leadership in the time of crisis. और आज मैं उस विषय के ऊपर बात करने वाला हूँ, इस संकट के समय में अगुवापन का अधिकार किस In तरह other हम words, चला सकते you हैं। take control of the situation around you in the midst of crisis. और ये संकट के समय में हम एक अधिकार लेते हैं अगुवा बनने का। Generally, people put their hands up and say, oh, there's a problem, I don't know what to do, get discouraged and depressed, and they make a mess of it. But God expects each and every one of us to take charge of the crisis and pray with the faith, talk with the faith, and bring a change in the situation. और खास कर ऐसे जो माहौल चले जाते हैं, जो तनाव आता है, संकट आता है, समस्याएं खड़ी हो जाती है, लोग हार मान जाते हैं, अपने हाथ नीचे कर देते हैं, लेकिन हमें उस अधिकार को बरकरार रखना है, कायम रखना है, उसके ऊपर हमें अधिकार चलाव करना है, इसके लिए हमें बुलाया In the गया है। midst of crisis, और इस संकट के समय में we have to personalize our crisis. और हमारे संकट को व्यक्तिगत में पहचानना We should चाहिए। not allow the crisis to overpower us or get us overwhelmed. और जो हमें संकट जो है हमारे ऊपर हावी होने के लिए नहीं, वो हमें अच्छा तनाव में से बाहर निकलने के लिए सहाय करने के लिए होना We चाहिए। have to learn to make use of the crisis for our own advantage. और ये जो संकट हमारे ऊपर जब मंडरा रहा होता है, हम उसका मौका का फायदा उठाकर बेहतर बनाना चाहिए। It's always important to look through God's word. और परमेश्वर के वचन के ऊपर आधारित होकर चलना सबसे The महत्वपूर्ण promise है। that God gave it to us, और जो वादा परमेश्वर ने हमें दिया that है, He works everything for good. और हर चीज अच्छी और बेहतर के लिए वो There करता is है। nothing God brings to our life to harm us. और ऐसे कुछ भी नहीं है, परमेश्वर हमारे जीवन के लिए ठेस पहुंचाने के लिए लाता है। Everything God brings to bless us, prosper us, and to give us a future and hope. और जो कुछ भी परमेश्वर हमारे जीवन में करता है, हमें माफी देने के लिए, आशीष करने के लिए, एक आशा देने के लिए और भविष्य देने के लिए। It's true, the time of crisis is always about uncertainty. और जो संकट का समय आता है, हमारी अपेक्षा के बगैर वो आता है। This COVID times had fueled the uncertainty to another level. और ये जो संकट का समय जो होता है, उसको हम जबरदस्त और तेल डालकर आग लगाकर एक बड़ी ऊंची पैमाने पर हम लेकर When the जाएंगे। COVID was at the peak, और जब ये महामारी का संकट जब बढ़ रहा we था, were filled with uncertainty. और हम अपेक्षा के काम से भरे हुए थे। Even the people of a lot of faith struggled to believe. और बहुत सारे विश्वास के लोग थे, वो भी इस समस्या में आ Because गए। your loved ones are dropping to death, people are getting sick. You open the television channel, there are lines for ambulances ready to bury people, but there's no place, and hospital beds are overflowing. The pavement of the hospitals, our people are sitting with oxygen masks trying to breathe. और लोग जो थे वो अपने आप को ख्याल करने के लिए मुश्किल है, अपने प्यारे लोग, अपने परिवार के लोग, अपने सदस्य जो है, कोई मर रहा है, दफनाने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, एम्बुलेंस मुर्दों को लेकर जा रही है और कुछ चीजें उनके लिए बेहतर नहीं हो रही, संकट में है लोग। In the midst of such kind of situation, और इस तरीके के संकट के समय के as मध्य a में pastor, I looked in every friend as loaded with success. और एक पासबान होने के नाते हर एक जो विश्वासी दोस्त जो होते हैं एक बड़ी कामयाबी पाए, ये मेरी अपेक्षा है, आशा है मेरी। Everything is against. हर चीज विरोध में है। And sometimes you face jealousy, envy,
and selfishness, and people try to take control when you go through crisis. But in the midst of all that, when we connect with God, we can make everything to work for us. और जब चीजें आपके लिए बेहतर नहीं हो रही है, संकट में है, और कुछ चीजें, कुछ लोग हैं वो हमसे जलते हैं, हमारे साथ में दुश्मन निभाना चाहते हैं, लेकिन उसको हम मौका नहीं देना चाहिए। उस संकट को हमारा एक बड़ा चुनाव बोलकर हम आगे बढ़ना Remember, चाहिए। याद रखिए, crisis create opportunity. ये संकट जब मंडरा रहा होता है, ये एक मौका पैदा करता है When आपके you लिए। connect with God, जब परमेश्वर से हम जुड़ते when हैं, your ears and eyes are tuned to the Holy Spirit, जब आपके कान आंख जो परमेश्वर की You आत्मा will- से जुड़ा होता you है, will learn from God परमेश्वर से आप सीखते हैं how to use every adverse situation for your own benefit. और हर एक जो बुरी अवस्थाएं होती है अपने फायदे के लिए हम किस तरह इस्तेमाल करें वो हम सीखते हैं। Your mind should be governed with the word of God, saying that God works everything for good. परमेश्वर के वचन के ऊपर हमारा मन आधारित होकर चलना चाहिए। हमारा हर जो होगा मेरे साथ So, वो अच्छे और भलाई के लिए होगा। Today morning I want to share a few points. What do you do when you go through crisis? और जब संकट में हम गिरते हैं तो कुछ विषय में सिखाऊंगा क्या करना चाहिए। In the midst of crisis, और इस संकट के समय में through prayer, प्रार्थना के जरिए you must receive an inspiration to see opportunities in everything. हर विषय में आपके पास में ऐसा एक स्वभाव होना चाहिए और उसको प्रभावित बनाने वाला होना You चाहिए। know, in this COVID crisis, some of the wealthy people's wealth has increased big time. और आपको पता है जो संकट का समय जो महामारी चल रहा था, जो धनी लोगों का जो संपत्ति है और अधिक ज्यादा बढ़ गई And है। those who trust God and say God works everything for good, they never lacked anything. और जो परमेश्वर में विश्वास रखकर हर चीजें अच्छी और बेहतर के लिए होती है, कहा उनको कुछ कमी घटी नहीं So हुआ when है। you go through crisis, जब आप संकट से you गुजरते must हैं, depend on the Holy Spirit पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर to get होना your है eyes and ears open और हमारे आंख और कान जो है to खुले see रखना the है। opportunities that God brings into your life. और जो परमेश्वर हमारे जीवन में जो मौका लाता है उसको हम देखने के लिए So, तैयार रहना number चाहिए। one, crisis time is a time of opportunity. और पहला विषय है जब संकट आता है ये हमारे लिए मौका लेके आता In है। the book of Ephesians chapter 5 verse 15 to 17, और एफिसियों का 5 हम देखते हैं 15 से 17। Apostle Paul say like this, अपॉस्टल पौलुस इस तरह कहता है, look carefully how you walk. और सावधान से चलो आप जिस तरह चल रहे हो, Look carefully how you walk. और जिस तरह आप चल रहे हो सावधान से Not चलो। as unwise people, but as wise. आप मूर्ख बनकर नहीं, होशियार बनकर चलो Making the best use of time और वो समय का अच्छा आप इस्तेमाल करें, because the days are evil. क्योंकि ये दिन दुष्ट है। So therefore, do not be foolish. इसलिए आप मूर्ख में ना रहें Try to understand what is the will of God is. और परमेश्वर की इच्छा क्या है वो समझने की कोशिश करो। So Apostle Paul, writing from the jail to a church in Ephesus, और एफिसी की कलीसियाओं में और बंदीगृह में से लिख कर he ये is telling, कहता hey है, Christians, कहता है मसीह look लोगों, carefully how you walk. और जिस तरह आपकी चाल चलन है सावधान से You रहो। may be going through fire. शायद आप आग से गुजर कर चल रहे हो, You may feel like you're drowning. शायद आप ऐसा महसूस हो रहा है कि आप डूब रहे हो, You may feel like hell is loosed up against you. और आप ऐसा लग रहा है कि चीजें आपके लिए विरोध में आ You रही may है। see opposition fuming up in every corner around you. आपके जीवन में हर एक कोने में वो विरोधी मंडरा रहा है ऐसा लग But रहा don't है, forget the fact that who is with you. लेकिन ये घटना भूल जाओ कि आपके संग में कौन The है, one who is with you is greater than the one who is in the world. और जो आपके बाजू में खड़ा है ये संसार में गरजने वाले से भी महान है। Apostle Paul says, look carefully how you walk. और अपॉस्टल पौलुस कहता है इस वचन में, आप जिस तरह चाल चलते हो सावधानी से चाल चलो। Every opportunity can be an opportunity of praise and worship and thanksgiving. और हर एक संकट में जो मौका आपको आता है प्रार्थना करना, आराधना करना और धन्यवाद की भेंट You अर्पण know, करना। not us unwise people, but learn to be wise people. आप मूर्ख व्यक्ति ना बने, आप होशियार व्यक्ति You know who बने। is a wise man?
आपको पता है होशियार व्यक्ति Wise का man लक्षण is क्या a है? man who listens to the voice of God. परमेश्वर के वो वाणी को सुनता Then he है says, make the best use of the time. और कहता है उस समय का आप अच्छा प्रयोग करो, Because days are evil. क्योंकि ये दिन दुष्ट है। These days are evil days. You ये know. दिन दुष्ट दिन तो है मेरे There is प्रियो, death in every corner. और हर ये कोने में मृत्यु मंडरा There रहा is है joblessness, और काम नहीं है, unemployment, और यहाँ पर कोई रोजगार नहीं है, poverty, debts. और गरीबी और कर्ज। You know, these days are evil, but make best of every time. ये दिन तो दुष्ट है, लेकिन उसको अच्छाई में इस्तेमाल Therefore, करना हमारी do बारी not है। be foolish, इसलिए आप मूर्ख ना बन जाए, but understand the Lord's timing. और प्रभु का जो सही समय उसको So- समझने वाले बन जाए। In the midst of crisis, you must have an inspiration from God to see opportunity in everything. और इस तनाव के समय में, संकट के समय में हर मौका जो है परमेश्वर को पूछना चाहिए There और are- उसको सही प्रयोग There are करना some people I चाहिए। come across in life. और हमारे जीवन में कुछ लोग हैं, उनकी हम सामना Whatever करते हैं, you try to do against them, they will use it for their own benefit. और उनके विरोध में कितना भी आप करने की कोशिश करो दुष्टता की, वो अपने ठेस के लिए नहीं, फायदे के लिए इस्तेमाल Our करेंगे। Prime Minister is the best example. और हमारे प्रधानमंत्री अच्छे उदाहरण है। You know, when he was standing for election and somehow people came to know he was a chai wala. और जब वो इलेक्शन में खड़े हो रहे थे, कुछ लोगों ने आकर कहा, अरे तू तो चाय बेचने वाला One है। of the opposition leaders said that, "Arey do chai wala, what is he going to make it? How can he be the Prime Minister?" और उसके जो विरोधी पक्ष में खड़ा था वो व्यक्ति कर कहा, ये तो चाय बेचने वाला है, ये क्या देश को चलाएगा? He said, Prime Minister said he was selling tea in the railway station. और प्रधानमंत्री ने कहा कि हाँ, मैं तो चाय तो रेलवे के स्टेशन में बेच रहा So था। they start teasing him, said, "Ye chai wala, how you can be the Prime Minister?" और तू तो चाय बेचने वाला है सड़कों पे, और तू किस तरह प्रधानमंत्री इस देश का बन Do सकता you know है? he made that, he put that word chai wala under the best use. और ये चाय वाला जो शब्द उसके लिए था, उसको बेहतर इस्तेमाल किया उन्होंने। His people create chai shops everywhere and said, "Chai pi churcha." और ये जो है उनके झुंड के ऊपर आप कुछ वाद विवाद He करो, used it as a trump card against the enemy. और लोगों के विरोध में उन्होंने एक पत्ते की तरह I have खिलवाड़ seen किया। certain people, no matter whatever you do against them, they will make use of it. और थोड़े ऐसे लोग होते हैं, आप उनके विरोध में कितना भी दुष्टता के कार्य कर लो, वो अपने ठेस के लिए नहीं, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। Somebody said, "Don't worry about the stones people throw at you. किसी ने कहा कि जो लोग पत्थर आपके ऊपर फेंकते हैं उसको देखकर हैरान मत हो जाना, Learn to collect them आप उनको इकट्ठा करने के लिए so that you सीखो, can use them as a stepping stone to your next level." और आपकी ऊपर की बढ़ोतरी के लिए आप उनको एक पैरी बनाकर So जाए। we must learn to see inspiration in everything. हर विषय में हमें प्रभावशाली होना जरूरी First है। Peter chapter 5 verse 7 to 9 says, और पहला पत्रस का 5:17 से "Casting कहता है, all your anxieties on him और आपकी हर एक ताड़नाएं जो है उनके ऊपर डाल दो, because he cares for you. क्योंकि वो आपका ख्याल करता है। Be sober minded and watchful. और आप एकदम सावधान से रहो और एकदम निर्दय Your रहो। adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, और जो दुष्ट आपके विरोध में गरजने वाले सिंह की तरह भड़कने वाला seeking है, someone to devour. और किसी न किसी को वो धोखा देकर ठेस पहुंचाने के Resist लिए, him. उसको आप इनकार Be करो, firm in your faith, आपके विश्वास में आओ, knowing that the same kind of suffering are being experienced by your brotherhood all around the world. और ये जानते हुए पूरी दुनिया में आपके भाइयों ने इस तरीके का कठिन का सामना किया है, जान लो। Apostle Peter says, "Cast all your worries unto Jesus." और अपostल पत्रस कहते हैं, आपकी हर चिंताग्रस्ताओं को आप यीशु के ऊपर डाल दो, Because he cares for you. क्योंकि वो आपका ख्याल करता Don't है। get up in the morning, sit and worry about what is not there. Learn to sit and thank God for what you have. और आप सुबह उठकर बैठकर चिंताग्रसित ना हो जाए, आप सीखो आपके पास में क्या नहीं है, उसको मध्य को क्या कर सकते Your हो। attitude of gratitude builds altitude.
आपका रवैया का बर्ताव जो है आपको ऊंचे पैमाने पर लेके जाने के लिए सहाय करता Then he said, है। be sober-minded and watchful. और आप एकदम चुपचाप बैठो और सावधान से देखते रहो Don't चीजों allow को। emotions to take control of your mind. आपकी भावनाएं जो है आपके मन को काबू में लाने के लिए मत Like दो। Habakkuk, watch and hear what God had to say. और हबक्कुक कहता है ये देखो क्या परमेश्वर ने कहा है। It is true, your enemy, the devil, is going around like a prowling, like an angry lion. और ये तो सच है जो शैतान जो है वो एकदम गरजने वाला सिंह की तरह गुस्सेदार होकर भड़क रहा है Seeking someone to devour. और किसी न किसी को वो ठेस पहुंचाकर धोखा The देने के लिए good देख रहा news है। is, he is only acting like a lion, but the real lion lives in you. His name is Jesus. और भारी तौर पर देखा जाए वो सिंह की तरह गरजने वाला तो है, लेकिन सही में जो सिंह है सच्चा वो आपके अंदर जी रहा है। He acts like a lion, but in reality he is a rat, he is a cat. वो बाहरी तो तौर पे देखने के लिए मिलता है कि वो एक सिंह की तरह गरजने वाला, लेकिन नहीं, वो तो एक बिल्ली की तरह है। Jesus is the real lion of Judah. और यीशु मसीह ही सच्चा वो He सिंह है lives within us. और वो हमारे अंदर जी रहा Though we है। have, therefore we have to resist the devil, इसलिए हम शैतान को दुत्कारते हैं, stand firm in our faith, हमारे विश्वास में मजबूत से खड़े होते knowing हैं that this kind of suffering all the brothers and sisters have to go through. और हम ये अपनी जानते हुए कि इस तरीके की जो संकट है हर एक मेरे भाई और बहनों ने इसका तो If you are a उठाया है। godly man, अगर आप परमेश्वर के in the जन midst हैं of crisis, you must be able to see opportunity. और ये संकट के समय में मौके की तलाश करने वाले बनना चाहिए। Hagar had a crisis. Hagar had a crisis. और हगा के जीवन में ये संकट आया Her था husband Abraham gave her some food and water, sent her away, और उनके पति अब्राहम ने खाना पीना पानी दिया और भेज दिया and she वहां, was in the wilderness. Her food ran out, her water ran out, और वो रेगिस्तान में थी, खाना पीना सब खत्म हो गया and she put her son aside और अपने पुत्र बाजू में डाल दी and turned this side to pray. और कहा अपनी और मुड़कर प्रार्थना And she की, said, God, I don't want to see the death of my son. हे प्रभु मैं मेरे पुत्र की मृत्यु नहीं देखना Bible चाहती। says God opened the eyes of Hagar, और परमेश्वर ने हगा के आंखें खोल दी and पवित्र when शास्त्र she कहता है। looked, there was a pool of water there. और वहां पर जब देखती है तो वो पानी बहता हुआ नजर आता है The servants of Elijah the prophet on Mount Carmel. और एलिजा के दासों माउंट कार्मन जो है उस पहाड़ के ऊपर, He said, Alas, Master, we are going to be killed. और कहा कि हे गुरुजी हम तो अभी मरने वाले There's हैं, a big army coming against us. The देखिए हमारे विरोध में बड़ी दुष्ट सेनाएं आ रही हैं। prophet said, Don't worry, my son. और उन्होंने कहा मेरे पुत्र आप मत The डरना, one who is with us is greater than one who is with them. वो जो उनके साथ में है हमारे विरोध में, हमारे पास में जो उनसे भी महान है। And prophet prayed for him. God opened his eyes to see God's wonders. और भविष्यवक्ता ने उनको प्रार्थना किया इनकी आत्मा की आंखें खोल दो, वो चिन्ह चमत्कार को देखने God पाए। opened the eyes of this servant boy. और इस दास की आंखें परमेश्वर ने खोल He दिया saw a fiery army of chariot and horses. और उन्होंने वहां पर रथ और घोड़ों को आग के गोले में बंधे हुए देखा। David prayed like this. दाऊद ने इस तरह प्रार्थना किया, Lord, open my eyes that I may see the wonders of your word. और प्रभु मेरी आंखें खोल दो आत्मा की, आपके महान कार्य को मैं देख सकूं। Apostle Paul said like this. अपॉस्टल पौलुस इस तरह कहता What है, can I say about these things? और इन चीजों के बारे में मैं क्या कह सकता If हूं? God is for me, who can be against me? अगर परमेश्वर मेरे लिए है तो मेरे विरोध में कौन है? I may have perils, persecution, poverty, rejection, betraying, backbiting, trouble inside, trouble outside, but in all these things, I'm more than a conqueror. लेकिन मेरे विरोध में चीजें आएगी, ठेस आएगी, दुख आएगा, संकट आएगा, मुझे सताया जाएगा, मुझे धोखा दिया जाएगा, मेरे विरोध में मेरे पक्ष लोग खड़ा किया जाएंगे। इस विषय में भी मैं परमेश्वर के बारे में क्या कहूं मेरे प्रियो? In the midst of crisis, God create opportunity. और इस संकट के समय में परमेश्वर एक मौका बनाकर देगा But you आपको। must have an inspiration from the Holy Spirit to see those opportunities that God created for you. और पवित्र आत्मा से प्रेरणा होना जरूरी है, पवित्र आत्मा भर कर उस मौका जो हमें परमेश्वर पैदा कर कर दे रहा है। Number 2, दूसरा विषय, you need to be flexible. और आप एकदम हिलने वाले होना चाहिए, आप मुड़ने वाले होना And you got चाहिए। to
you got to anticipate unexpected. और अपेक्षा की चीज को उनको आप बेहतर बनाने की कोशिश You करना know, in चाहिए। life there will be all kinds of surprise around the corner. और इस संसार में हर एक कोने में हमारे लिए हैरान करने वाली बातें We हैं। really don't know what's waiting for हमें us. पता नहीं कि अगला क्या खड़ा है हमारे विरोध में। I came to Goa in 93 to serve God. I had no idea what is waiting for me, what will be, where I will stay and what I will be. और मैं जब गोवा में आया था 1993 में, मुझे पता नहीं कि मैं क्या हूँ, क्या बनने वाला, मेरे लिए क्या रुका है, क्या कर सकता हूँ, इसकी अपेक्षा बिल्कुल नहीं थी। There was nobody to support me. और मेरे ऊपर कोई नहीं था कि मुझे There was मदद nobody करे, to help me. मुझे सहाय करने वाला कोई नहीं। I stayed in one lodge for 20 rupees, only bed. 20 रुपया के लिए मैंने एक लॉज में खड़ा हो गया, सिर्फ मुझे कटिया मिला। For many weeks I could have only one meal. और कई हफ्ते तक एक के साथ And एक then खाना I खाता ended up था। staying in somebody's backyard. No furniture, nothing on the floor. और किसी भाई के पिछले घर में मैं रहता था, वहां पर मुझे कोई चटाई Then I बिस्तर got नहीं थी beaten up. और यहाँ पर मुझे पीटा गया। I had too many problems. I did not know what will happen, where I will end up, who will support me. But there was one thing I was firm, that God sent me and He is with me. और मुझे पता नहीं कि सहाय कौन करेगा, मदद कौन करेगा, मेरी देखभाल कौन करेगा, लेकिन ये कैसे मेरे अंदर इच्छा थी कि महसूस हो रहा था कि परमेश्वर मेरे लिए है। Get surprised by the Holy Spirit. और ये पवित्र आत्मा हमें हैरान करने दो। God said, I will open the windows of heaven and परमेश्वर- shower the blessings. परमेश्वर कहता है मैं स्वर्ग के खिड़कियों को खोलूंगा और तुम्हें बहुत आज से God आशीष said, करूंगा। ask of me, I will give you nations. परमेश्वर कहता है आप मेरे से पूछोगे तो मैं तुम्हें राष्ट्रों He को said, दूंगा। ask and it shall be given. आप मांगो तो आपको दिया जाएगा, Seek and you will find. आप ढूंढो तो आप उसे खोज Knock and the करोगे, door shall be open. खटखटाओ आपके लिए दरवाजा खुला Everyone होगा। who asks will receive. जो मांगता है वो पाता है, Everyone who knock, जो door will जाकर be open for him. खटखटाता है उसके लिए दरवाजा खुला Everyone who होता goes है, seeking, he will और find. जो ढूंढता है वो उसे खोज कर लेता है। I'll tell you, be a professional in asking and seeking and knocking. और मैं कहता हूँ हम मांगने में, ढूंढने में, खटखटाने में हम एकदम मायूर है, Never be ashamed. हम बेशर्म लोग हैं, So that you will be surprised by the Holy Spirit. ताकि पवित्र आत्मा हमें हैरान करने के So, कार्य करने पाए। flexibility to anticipate the unexpected. और हम जब अपेक्षा के काम को पूरा करने के लिए हम We- कौन सा भी समय में कहीं भी We मुड़ने वाले होना have no चाहिए। idea what's around the corner. We हमें have no idea. पता नहीं कि हमारे ये कोने में क्या छुपा है हमारे All लिए, that we got to make sure that God is with us. लेकिन ये कि खराब पे उतरना कि परमेश्वर जो है हमारे संग Maybe है। it's all of a sudden God opened the heavens and pour out blessings upon you. और चाहे ये कि झटके में अचानक से स्वर्ग की खिड़की दरवाजे खोल गए और बहुत आशीष आपके जीवन में Or उंडल maybe लिए, all of a sudden you have a death of a loved one. या अचानक से कोई प्यारे लोग हैं आपके, उनकी मृत्यु हो गई, Or you can be visited with a sickness all of a sudden. या आप इस बीमारी में कुछ आपको देखने को मिल Or गया, all of a sudden there's a broken relationship or somebody whom you really loved betrayed and walked away from your life. शायद अचानक से आपके संबंधी है वो आपसे नाराज हो गए या संबंध टूट गया और आपको छोड़कर चले गए। One thing I'll tell you, life is full of surprises. एक बात मैं आपको कहता हूँ, हमारा जीवन पूरा हैरान से भरा हुआ है। Some are good surprises, थोड़े अच्छे हैरानी है some are bad और surprises. थोड़े बुरे हैरानी है, But get ready to be surprised. लेकिन आप हैरान होने So के we लिए need to तैयार हो have a जाओ flexibility to anticipate the unexpected. और अपेक्षा की किए हुए कार्य को आप उनको निर्देश में सिखाने के लिए Also- अपने आप को एकदम मूडने वाला बनाना चाहिए। Apostle Paul says, not and reveal what we would become. और हम इसकी अपेक्षा नहीं बता सकते हैं We are क्या है just जो आने वाला pressing है, on. और कहता है हम लगातार आगे बढ़ रहे You know, हैं। people surprises you. आपको पता है लोग हैरान करते हैं आपको। Do you think Jesus was surprised by the behavior of Judas and Peter and all of the disciples? आपको लगता है कि यीशु मसीह को जो यूदा था और पतरस था और सिमोन था, उनके बात को देखकर उसे हैरान हुआ, He loved them, fed them. फिर भी उन्हें प्रेम किया, He उन्हें taught them. खिलाया पिलाया, बात He किया, performed miracles for them. उनके लिए सिखाया, He चिन्ह even चमत्कार किया। sent them and they did miracles in His name. और उन्होंने जब उनको भेजा और यीशु के नाम में उन्होंने चिन्ह But चमत्कार when He किया, was in need, जब उनको जरूरत थी यीशु को, they all left Him.
और सब छोड़कर भाग गए। Now Jesus knew they would leave. और यीशु को पता था कि वो छोड़कर भागने वाले हैं। And did he got surprised? क्या ये देखकर वो हैरान हो Did he गया? get discouraged? क्या उदास हो गया? Because he was flexible, he was anticipating the unexpected. को बिना अपेक्षा के काम को उसको निर्देश सिखाने के लिए वो एकदम मुड़ने वाला था, उसे कोई कुछ नहीं कर सकता He उसका। said, devil will drive you, all of you away from me. और शैतान जो है हर तरीके के कार्य जो है All वो of हमारे you आसपास leave से me. लेकर आता है, All of you leave me. और हर एक छोड़कर चले जाएंगे उस समय में। And Peter said, but Lord, even if everybody leaves me, no way I'll leave. लेकिन पतरस खड़ा होकर कहता है, क्या बात कर रहे प्रभु आप, ये सब छोड़कर चले जाएंगे लेकिन मैं वहां पर टट के खड़ा रहूंगा। Jesus said, Peter, यीशु ने कहा, पतरस before the rooster crows once, you will deny me 3 times. यीशु ने कहा, ये मुर्गा बांग देने का पहला 3 बार तू मेरा इस धरती पे इंकार कर चुका होगा। You know, Jesus was flexible to expect the unexpected. और यीशु मसीह की जो मुड़ाई जो है अपेक्षा के काम को निर्देश देकर चलाने वाला One बना। day Jesus said, Peter, devil is asking you your life to be spin over a winnowing fan. और यीशु ने ये पतरस को कहा, शैतान जो है आपके झांटने वाले बर्तन में डालकर आपको झांटने के लिए कह रहा है, But I prayed for you. लेकिन मैंने आपके लिए प्रार्थना You किया will overcome that. और उसके ऊपर आप हावी When you होंगे। overcome, go and encourage other people to overcome. और जब आप इनसे बाहर निकलेंगे लोगों को और आप उतावले बना देंगे। When you read Acts chapter 20, verse 22 to 24, तब प्रेरितों की 20 में हम देखते हैं और 22 से 24 तक Apostle Paul says about his life. अपोस्तल पौल अपने जीवन के बारे में कहता है, He was a man who worked hard, suffered for God. और ये व्यक्ति बहुत कठिन काम किया था, यीशु के लिए तकलीफ झेला He था। really did not know many a time what will happen, उन्हें कई बार ऐसा पता नहीं था इस समय में क्या होने वाला है but उसके he अनुसार, kept going with the calling. लेकिन उनके जो बुलावा था उसको लेकर लगातार चलता Turn your रहा। Bible to Acts chapter 20, और प्रेरितों की किताब का 20 अध्याय हम खोलेंगे 22, 23, 24. और 22, 23 और 24 He said, वचन पढ़ेंगे। behold, कहा उन्होंने, I am going to Jerusalem, और देख ठहरे रहो, मैं यरूशलेम की ओर बढ़ रहा हूँ, bound by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से मुझे प्रेरणा किया So गया that है। means he was not going according to his will, he was going according to the plan of the Holy Spirit. और जब अपनी स्वेच्छा के साथ में नहीं जा पाया तो पवित्र आत्मा की उस प्रेरणा लेकर वो आगे बढ़ रहा था, Not knowing what will happen to me there, और उन्हें पता नहीं कि वहां पर क्या होने वाला है। except the Holy Spirit testified to me in every city that imprisonment and afflictions are waiting for me. और जो अपेक्षा नहीं किए थे, पवित्र आत्मा ने जो स्पर्श उन्हें किया कि क्या तकलीफ मुश्किल हालात का सामना उन्हें करना पड़ेगा या बंदी गृह में बंद भी होना पड़ेगा, Think about तकलीफ Apostle झेलना Paul. पड़ेगा। He said, I'm bound by the Holy Spirit. और कहता है पवित्र आत्मा से मुझे बांधा गया Listen, है। I'm going to Jerusalem. और सुनो मेरे भाई, मैं यरूशलेम की ओर बढ़ रहा I हूँ, really don't know what will happen to me there. मुझे पता नहीं वहां पर की But स्थिति क्या every है। city I went, Holy Spirit is telling me that there'll be afflictions and imprisonment waiting for me. कहता है जब मैं हर शहरों में जाता हूँ शायद मेरे लिए बंदी गृह या तकलीफ झेलना वो हमेशा तैयार खड़ा है। But Apostle Paul said, but I do not count my life of any value, no precious as to myself. और कहता है मेरे जीवन का मैं कोई अमूल्य नहीं समझता, मेरे लिए क्या अच्छाई है उसकी ओर मैं गौर नहीं I only करता। want to finish my course and complete my ministry. कहता है मैं सिर्फ यही चाहता हूँ जो परमेश्वर बुलाया है उस दौर में मैं दौड़ूं और मेरी दौर में अच्छी तरह सेवकाई Which करूं, Lord Jesus assigned to me. और जो यीशु मसीह ने उसको उसके हाथ में काम That's दिया the था। challenge you and me has to have. और यही चुनौती आप और मेरे You पास know, में है। yesterday evening the Hindi leaders, I was sharing with them. और कल शाम को हिंदी की जो अगवे उनको Your सिखा रहा life था। is like a train journey. और आपका जीवन एक ट्रेन के सफर की तरह है। Train stops in different stations. और जो ट्रेन जो होती है वो अलग अलग स्टेशन के ऊपर रोकती है। There are people comes in, there are people goes out. और कोई लोग अंदर आते हैं और कहीं लोग उतर जाते There are हैं। people gets in, there are people gets out. और थोड़े लोग अंदर आते हैं, थोड़े लोग बाहर जाते Some हैं। do good, some mess up, some dirty. और थोड़े आते हैं अच्छा करते हैं, थोड़े आते हैं गंदगी फैलाकर Some चले don't know, जाते they हैं। have a regards for the train. और थोड़े तो उस ट्रेन के आभारी भी नहीं But होते the हैं। train keeps going. और वो ट्रेन जो है लगातार दौड़ता रहता है Till it reaches its final और destination. वो आखिरी की रुकावट आती है तब तक वो दौड़ता ही So, रहता in है। our life too,
हमारे जीवन में भी All kinds of people comes into our life. हर तरीके के लोग आकर जाते हैं, Some do good, some do bad. और थोड़े अच्छे करते हैं, थोड़े बुरा करते हैं, Some leave us unexpected. और थोड़े अपेक्षा के साथ में हमें छोड़कर चले Some जाते हैं, take what is ours and walk away. और थोड़े हमारा जो स्वतः का है वो ले लेते हैं और भाग Some जाते हैं, betrays us, some gives us false promise. और थोड़े झूठे वादा करते हैं, थोड़े धोखे देते हैं। But we just got to keep going. लेकिन हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए, लगातार हम बढ़ने Never, वाले never बने। stop. कभी भी रुके नहीं अवस्थाओं में आकर। Apostle Paul says that, behold, my friends, I am going to Jerusalem bound by the Holy Spirit. अपॉस्टल पौलुस इस वचन में कहता है, हे मेरे प्रिय आप ठहरे रहो, मैं पवित्र आत्मा से बंधा हुआ हूँ और उसके कारण I यरूशलेम में do जा रहा हूँ। not know what will happen to me. मुझे पता नहीं कि वहां पर क्या होने वाला है, Except I keep hearing the Holy Spirit says to me through people, I will have imprisonment and I'll have persecution. और ये तो बात सत्य है, लोग के जरिए मुझे सुनने के लिए मिलता है, मुझे पकड़ा जाएगा, बंदीगृह में डाला जाएगा और मैं तकलीफ झेलूंगा। But he said, that's fine for me. और वो कहने लगा कि ये तो मेरे लिए I कोई बात don't नहीं count है, my life any great worthy of. और मेरा जीवन में कोई बड़ा महान अमूल्य व्यक्ति नहीं All that I समझता। want to do is to complete the work Jesus gave to me. सिर्फ ये के काम मुझे करना है जो यीशु मसीह ने काम दिया है, I want वो to मुझे take this, पूरा करना है। I want to take this gospel to every possible place I can. और ये सुसमाचार में ये के काम कर सकता हूँ, जहां तक पहुंचता है वहां तक अंत की सांस तक मैं पहुंचाता Now, रहूंगा। when a leader or a Christian face persecution or difficulty, और जब विश्वासी या जो अगवा होता है और इस सताव का he सामना must करता है, practice what I call as circular vision. और ये हमें हमारे जीवन में प्रयोग करना है। सर्कुलर विजन मतलब अपने आप को ये गहरे में when डाल के you रखना। go through an acute pressure, maybe from the top or down or from the side, you must learn to look at a 360-degree view up and down and all around. और जब आप कोई मुश्किल या संकट में आ जाते हैं तो आप 360 की डिग्री के हिसाब से आप घूम कर देखना चाहिए और ऊपर नीचे से भी आपको दबाने वाला ऐसा महसूस You होना need to have a चाहिए, circular vision और आपका जो है एक गहरे में and रह के काम ability करने to वाला see होना चाहिए, around और उसके आसपास आप देखने and वाले बनना then चाहिए, look through it to see what does God want me to do. और उस दाहिने में रहकर देखना चाहिए कि वहां उस अवस्था में परमेश्वर Whom क्या can कर I रहा है, rely on this kind of situation? और इस अवस्था में मैं किसके ऊपर निर्भर हो सकता हूँ। What is Holy Spirit speaking to me? पवित्र आत्मा मुझसे क्या बातें कर रहा है। Sometimes changes comes like shock. और कई बार जो बदलाव है एक बड़ी शॉक की तरह आता है Let me हमें। tell you, I'm a 57-year-old man. I've faced so many shocks. Finally, I come to say, no shock can shock me anymore. अभी तो मैं लगभग 60 साल का हूँ और इतने बड़े बड़े हैरान करने वाले बातें में मेरे सामने घटनाएं घट जाती हैं कि मैं अपेक्षा करता नहीं, उसके बारे में आप पता नहीं है। And all the people who came to my life, I love them sincerely. और जितने भी लोग मेरे जीवन में आया मैंने उनको ईमानदारी से प्रेम जताया, But some people never believed. और थोड़े ने कोई विश्वास किया भी नहीं, Some people left me. और थोड़े लोग छोड़ दिए। You know, when you love somebody genuine and they leave you, it causes so much of pain. और आप तहे दिल से ईमानदारी से प्रेम करते हैं और वो लोग आपको समझते नहीं है, छोड़कर चले जाते हैं, You दुख sit ठेस down पहुंचाता है। and wonder, what did I do wrong? और आप बैठकर सोचने लगेंगे मैंने क्या गलत किया इस भाई के साथ, Why they are not grateful? ये क्यों आभारी नहीं है। You have the memories of all the good you done for them, but they have only the memories of what you didn't do for them. और आपके पास में तो इतनी ताज़ा यादगार है जो अच्छा है आप उनके लिए किया, लेकिन उनको ये की बात याद है जो उनके लिए क्या नहीं किया। As a beginner, you feel hurt. और शुरुआत में तो एक ठेस पहुंचता है Sometimes you आपको, feel discouraged. और उदास भी बनते हैं थोड़ा समय में। You feel to say it's a waste of time to love people. It's a waste of time to be genuine. और इसके बाद में बैठकर सोचते हैं लोगों को दे दिल से ईमानदारी से प्रेम करना ये तो बर्बाद करने का What's समय the point है। of trying to help people? Nobody helped me. और मैंने कितना मदद किया लोगों को, किसी ने मुझे मदद नहीं किया। You know, such kind of situation, we must be able to see things through the eyes of God and discover God's
purpose in that changing situation. और इस अवस्था में हम बैठकर संकट में सोचना चाहिए कि हम तनाव में, मुश्किल में, संकट में आने के बाद में भी हम क्या हल ला सकते हैं, उसके ऊपर लक्ष्य लगाना And चाहिए। the third thing in the midst of crisis, और तीसरा विषय इस संकट के we समय should have में, the freedom to unleash our passionate pursuits. और हमारे पास में ऐसी आजादी होना चाहिए जिसके लिए हम बेताबू है, In उतावले the उसको midst करने of की क्षमता। crisis, we should unloose ourselves into the freedom of God and the glory that God promised to us. और इस संकट के समय में हम अपने आप को पूरी तरह खुला करना चाहिए परमेश्वर की महिमा में We need to होकर। unleash a passionate pursuit, passionate worship, passionately reading the word, passionately loving people. You betray me, I'm going to love you all the more because और of Jesus. हमें जो है लोगों की प्रति या किसी के प्रति जो है हमें अच्छी तरह भावनाएं दिखाना है। हम एकदम चाहत के साथ में, जी जान के साथ में आराधना प्रार्थना I करना don't को want to प्रेम करना keep an सीखना account चाहिए। of wrongdoings. I want to keep an account of God's doing. और जो लोग गलत करते हैं वो मैं उनका कोई हिसाब किताब नहीं रखूंगा, जो परमेश्वर करता है उसका हिसाब किताब रखने वाला You मैं need जरूर to बनूंगा। unleash a passionate pursuit into what God has called you. जो परमेश्वर जिस चीज को करने के लिए बुलाया है, हमें उतावले होकर उसको खुला करके हमें बहने के लिए छोड़ देना 1 चाहिए। John chapter 3 says, और पहला यूहन्ना का 3 अध्याय के see what kind of love God has bestowed on us. देखिए किस तरह का प्रेम परमेश्वर ने हमारे लिए बहाया That है, we should be called children of God. और परमेश्वर ने उसका पुत्र पुत्री मिलकर So बुलाया। we are. हम वो है, We are the children of God. हम है उसके। I was studying about this title, Children of God. 10 times is written in the Bible. 10 बार ये बच्चों की संतान के बारे में लिखा है, उसको अध्ययन कर रहा था मैं। 5 times about the angels and 5 times about Christians. और 5 बार देवदूत की और 5 बार विश्वासियों की। It's another word, God treat you equal to angels. और परमेश्वर इसका मतलब है कि देवदूत के तुलना करता है When आपको। God made man, he made little lower than the angels. और जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, देवदूत से थोड़ा कम में But when बनाया। you become born again, जब नया जन्म हमने पाया, God comes and dwell in you. परमेश्वर आकर हमारे अंदर बसने Because लगा। God dwells in your heart, जब परमेश्वर आपके हृदय में बसता he है, commands the angels to come and serve you. और देवदूत को आकर आपकी सेवा करने के लिए You know, दे देता every है। Christian must remember there are angels to minister to you. हर विश्वास याद रखना है, आपको देवदूत जो है वो चलाने के लिए आपके बाजू में है। So he said the reason why the world does not know us is because it did not know Jesus. क्योंकि ये कारण है कि संसार ने यीशु को नहीं पहचाना, वो हमें भी नहीं पहचानते He हैं। said, beloved, we are God's children now. और कहता है मेरे भाइयों, हम परमेश्वर के And संतान what we हैं, will be still not appeared. और जो हम होने वाले हैं अभी वो बात आई नहीं Like I है। said earlier, what you will become is not revealed. लेकिन मैं पहले भी इसे कह चुका हूं, जो आप बनने वाले हैं But we अभी know तक नहीं दर्शाया है। we know that when Jesus appears, we shall be like him. अब हम जानते हैं कि जब यीशु आता है हम उसके तरह बन जाएंगे, And we shall see him as he is. और जिस तरह वो है उसकी उसी तरह देखेंगे। So everyone who has a hope, let him purify himself. हर एक की आशा है अपने आप को शुद्ध बनाएं। In the time of crisis, leaders often don't trust themselves enough to take the first step to define the heightened accountability. और जब पहले विषय जब हम देखते हैं हमारे जीवन में बढ़ने की तनाव के संकट में आता है, इसका हिसाब किताब का लक्षण होते नहीं दिखाई Sometimes देते। we get overwhelmed with grief or hurt, upsetness, and we don't understand God's plan. और कई बार ऐसा होता है, हमें ठेस पहुंचता है, तकलीफ होती है, अपने आप को हम नीचे जाने वाले दिखाते हैं और उस समाचार में आशा नहीं The दिखाई challenge देता is है। you pursue God's plan even if nobody understands you. चुनौती ये है कि परमेश्वर की योजना है शुभ समाचार का आप लगातार करते रहो, अगर कोई आपको समझता नहीं है तभी भी। Somebody said like this, किसी ने ऐसा कहा, inventing and pioneering और आप उसको तैयार करना और उसको लक्ष्य पूर्वक चलाना requires a willingness to be misunderstood for a long period of time by others. और ये ऐसी अपेक्षा को घटाता है कि ये लंबा आयु तक चलता कैसे है। People see your outward achievements.
लोग आपका बाहरी जो है संपत्ति उसको देखेंगे Some appreciate, but many become critical. और थोड़े आभारी होते हैं, बहुत सारे संकट में आ जाते हैं। You do something with all your heart and sincerity, but they will find fault in it. और आप पूरी ईमानदारी से हृदय से करते हैं, लेकिन अच्छाई के बजाय लोग आपके ऊपर गलतियां But if निकालेंगे। you really wanted to be successful, अगर आपको सच में कामयाबी if चाहिए, you really want to serve God's purpose, अगर सच में आप परमेश्वर का you उद्देश्य को must पूरा be करना willing चाहिए to be misunderstood and accused. और आपको गलत समझना चाहिए, आरोप भी लगने In चाहिए। the Gospel of Matthew chapter 5, और मत्ती की 5वां अध्याय में Jesus said, यीशु ने कहा, "Blessed are you और वो आशीषित when they है, say all kinds of evil against you for my sake." मेरे नाम के कारण आपके ऊपर जो भी गलत आरोप He लगाते said, हैं, तब आप "Rejoice आशीषित and be exceedingly glad." उस समय में आनंदित हो, मगन हो जाओ और आगे बढ़ते In रहो। other words, call for a party. और मैं इसका मतलब है आप त्योहारें Throw मनाओ। up a party. If somebody comes and says, "What is the party is all about?" और कोई आकर पूछते त्योहार किस लिए मना रहे हैं आप? Oh, this party is all about because everybody is accusing me and misunderstanding. Nobody believes me, so I thought I'll celebrate. और मैंने ऐसा एक नया योजना बनाया, नया तरीके से त्योहार मना लेता हूँ। कोई पसंद नहीं करता मुझे, मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरे पर आरोप लगते हैं, गलत हूँ, Nobody इसके लिए trusts मैं त्योहार मना रहा हूँ। Everybody is talking against. और हर एक आपके विरोध में बातें कर रहा है। Bible says I go to have a party, so I'm having a party. और बाइबल कहता है कि आप उसकी खुशियां मनाएं, त्योहार मनाकर, इसके लिए मैं खुशियों के त्योहार मना रहा I हूँ। need to see somebody who will have a party like that. और मैं देखना चाहता हूँ किस तरह त्योहार मनाने वाला कोई है क्या। So there are three things I shared with you this morning. 3 विषय मैंने आपसे सुबह में बातें की। Have an inspiration to see opportunity in every situation. हर अवस्था में एक अपेक्षा कर चलने वाले बनो। Have your mind enlightened by the Holy Spirit to see what God has for you in the midst of crisis. और जब भी संकट में आ जाते हैं, पवित्र आत्मा को आप अनुमति दो, आपके मन को काबू में लेकर लक्ष्य Be पूर्ण बनकर flexible. चलाएं। Don't become stubborn. आप एक ही जगह पे घट बनने वाले मत Learn बनो, to आप थोड़ा expect- मुड़ने वाले बनो Learn to expect the unexpected. और अपेक्षा के चीज की अपेक्षा करने वाले बनो। And learn to unleash your passion towards God. और आपकी जो करने की क्षमताएं हैं उनको परमेश्वर के नाम से आप खुला कर दो Don't सबको। sit and think about what you don't have. और बैठकर ये मत सोचो कि क्या नहीं है आपके पास, Learn to think about what you have and worship God for that. और ये सीखो कि आपके पास में है क्या और आराधना करना। It is the attitude of gratitude that takes you to altitude. और ये एक रवैया का बर्ताव है, आपको बड़े पैमाने पे लेके जाता है। God doesn't get pleased by your complaints. और आप शिकायतें करते हो, परमेश्वर इससे खुश नहीं होता In है। fact, God hates people complaining and grumbling and murmuring. और जो लोग शिकायतें, आरोप लगाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, Bible बड़बड़ाते हैं, says परमेश्वर God- नफरत करता है उन लोगों को। Bible says God dwell in the praises of His people. और पवित्र शास्त्र कहता है परमेश्वर उनके लोगों में बसता है जहां पर लोग As you खुशियां मनाते worship, हैं। you prepare yourself for a greater blessing. और जिस तरह आराधना करते हैं, बड़ी आशीष के लिए अपने आप को तैयार करते So, हैं। in the midst of this crisis, और इस संकट के समय में we need to personalize our faith. हमारा विश्वास को व्यक्तिगत में बना के रखना Look to है, God more deeper. परमेश्वर को और गहराई में देखना Learn to see है। the hand of God in every situation. हर अवस्था में परमेश्वर का उसका हाथ देखना चाहिए। Remind yourself every day that God is your provider. हर दिन अपने आप को याद करवाना चाहिए, परमेश्वर ही हमारे हर चीजों को उपलब्ध करवाने And He वाला will है, never let you down. और वो कभी भी कदा भी हमें नीचे नहीं The छोड़ेगा। God whom we serve जिस परमेश्वर की हम सेवा करते is हैं, much more than able. और वो उसकी सीमा से बाहर आकर In the आशीष midst of करता your है। problem, when you turn to God, और जब इस संकट के समय में परमेश्वर की ओर He will मुड़ते turn हैं, all your problem into your blessing. हमारे हर एक संकट को लेकर वो आशीष में बदल देगा। People who hate you will come to love you. लोग जो नफरत करते हैं आपसे, वो प्यार करने के लिए People who आएंगे। oppose you will come to serve you. जो लोग आपका विरोध करते हैं वो आपका सेवा करने People who आएंगे। gossip about you will say good about you. जो लोग आपके बारे में चुगली करते हैं वो अच्छा कहने के लिए आएंगे। God change every situation. परमेश्वर हर अवस्थाओं को बदलता है। So how many of you are ready to look to God in the midst of crisis? कितने तैयार है सीखने के लिए इस संकट के समय में परमेश्वर के How many निर्भर of you are होकर ready चलने to के लिए? believe that God, you're a God who works everything for good? और कितने तैयार हैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के लिए? आप विश्वास का परमेश्वर है पिता। Lord, in the midst of this crisis, और इस संकट के मध्य में I want to see God's opportunities.
परमेश्वर की मौका तलाश करता हूं I मैं, want to see God in the midst of my crisis. और मेरे संकट के समय में परमेश्वर को मैं देखना In चाहता the हूं, midst of this crisis, और इस संकट के मध्य में I want to remain flexible. और मैं मुड़ने वाला बन I want जाऊं, to fix my eyes on Jesus. यीशु के ऊपर मेरी नजर लगा कर I will रखूं, expect the unexpected, और अपेक्षा के काम को मैं अपेक्षा करूं, whether good or bad. बुरा या अच्छा, I'll be flexible और मैं मुड़ने वाला बनूं, and I will pursue my calling in the midst of crisis. और इस संकट के समय में मेरी बुलावट जो है मैं उसको लगातार आगे करता I रहूं, will not allow myself to be bottled up with the hurts and griefs or pain or sorrow. या मुझे अपने आप को तकलीफ या झंझट में या किसी को लेकर ठेस पहुंचाकर बैठने वाला नहीं बनूंगा। I will unleash my emotion to worship God. मेरे भावनाओं को मैं छोड़ दूंगा और आराधना करूंगा। I will be emotional, dramatic, enthusiastic in my worship. आराधना करने के समय में मेरे भावनाओं को, मेरे कदरों को, मेरे समझ को सब छोड़कर उस आराधना में बहला लूंगा। I will lay all my problems aside. मेरे हर संकट को मैं बाजू में छोड़ दूंगा, Because you told me that you will care for me, I got to cast all my burden unto you. क्योंकि आपने कहा कि आप मेरे ख्याल करते हैं, इसलिए मेरे हर बोझ को मैं आपके ऊपर डाल देता हूँ। Lord Jesus, हे प्रभु यीशु, this morning we come to you. इस सुबह में हम आपके सामने आते हैं। Thank you that you died on the cross for us. धन्यवाद हमारे लिए, मेरे लिए उस क्रूस के ऊपर मरने के Thank you that you paid the price for sin, sickness, poverty, death and disease. धन्यवाद हमारे पाप, हमारे हर तरीके के बीमारी और प्रभु हमारे अधर्म के काम, श्राप के लिए Thank प्रभु आप you. प्रभु बलि हुए। Thank you for this wonderful love you lavished on us. धन्यवाद प्रभु, ये महान प्रभु कृपालु दया जो हमारे ऊपर That we दिखाकर are प्रेम called किया, the children of God. ताकि हम परमेश्वर के बेटे बेटियां बुलाए जाए। We want to praise you in every situation. हर अवस्था में आपकी आराधना करते हैं We want to unleash our emotions unto you, O God. प्रभु, हमारे भावनाओं को आपके लिए हम बहा देते We हैं। don't want our emotions to be invested in hatredness and jealousy and divisions and all kind of evil. We want to invest all our emotion in God, in worshiping, loving, praying, serving God and serving God's people. प्रभु यीशु, हमारी जो भावनाएं हैं, हम विरोध, बदला, आरोप लगाना या प्रभु कोई दुष्ट काम में बहलाना नहीं चाहते। परमेश्वर पिता, हमारे भावनाओं को प्रभु आपको प्रभु देखकर प्रभु आपकी आराधना में, उस भावना में हम खो जाना चाहते हैं। Bless पिता, each and everyone who listen to me. हर एक को प्रभु आशीष कर जो सुन रहे हैं, Cover them in your precious blood. आपके अमूल्य लहू में उन्हें प्रभु ढांक Protect लो। them, Father, प्रभु उन्हें स्पर्श करो, and provide all their needs. उनकी हर जरूरत को पूरा करो। In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं Amen. पिता। All the people of God Amen. say amen. परमेश्वर के हर लोग कहेंगे आमीन। Amen. God bless you. आमीन। परमेश्वर आपको Hopefully आशीष next करे। Sunday we'll meet together in faith community. आशा करता हूँ अगले आने वाले हफ्ते को Till हम that, फेथ remain कम्युनिटी चर्च में safe, आएंगे be blessed. और तब तक सुरक्षित रहे और आशीषित रहे। God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष करे। Hallelujah. आमीन।